Namaskar and welcome to Doctor Speak once again. So in the next half hour, I beg your pardon, next 1 hour in fact, we'll be taking your questions. We'll be solving all your problems with regard to COVID-19 with an eminent panel of doctors who will be joining us via Skype and Zoom. And you can also call us, our phone numbers are there, but you can also post your queries on social media. Anything you want to know about the current situation with regard to COVID, how you have to deal with it, because we are living in a stage where we are living with this virus. My name is Mark and with me is Rajni. शुक्रिया मार्क, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्पीक में। कोविड संक्रमण के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से लड़ाई ने कहीं ना कहीं इस संक्रमण को कमज़ोर ज़रूर किया है और हर दिन हमारी बेहतर होती रिकवरी दर इस बात का सबूत है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, मास्क सावधानी से पहनना हो, आक्रामक टेस्टिंग हो या फिर कंटेनमेंट जोन्स में बेहतर रणनीति हो, इन सभी उपायों से इस संक्रमण को काबू में किया जा रहा है। और आप अपने स्तर पर किस तरह इस संक्रमण को मात दे सकते हैं, यही बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। आप हमें कॉल कीजिए और जान लीजिए अपने सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं आज के विशेषज्ञों का। Indeed, let me introduce you to our guests, and we have with us Dr. Anil Gurtu, who is the professor and head of the Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College. Dr. M.C. Mishra, Senior Surgeon and former Director of the All India Institute of Medical Sciences, and Dr. Sanjay Pandey, Professor, Department of Neurology at GB Pant Hospital, are the doctors on our panel today. We'll take a question from Dr. Pandey to start with. There are some instances, at least people who have had COVID say that, they continue to have the symptoms after a period of time. Is this a neurological condition, would you say, or because, if the virus has left their body, and why do they continue to have the symptoms? As I understand, you were asking about the neurological complications of COVID. So I will just summarize that. As far as neurological conditions are concerned, you can see that COVID has some pre-symptomatic phase and some symptomatic phase and some post-symptomatic phase. So in the pre-symptomatic phase, patients may have something like lack of smell, lack of taste, and that is very considered to be very typical for a COVID infection. And if the patient complains of any lack of taste, of lack of smell, it may be possible that in coming few days the patient may develop symptoms of COVID. As far as acute neurological conditions are concerned, very similar to the other influenza virus, you can get conditions like DB syndrome, any neuromuscular paralysis, and even encephalitis. And there have been some reports of stroke also, like you see that in COVID-19, one of the major complications is the thrombosis. So apart from the heart attack, patient may have stroke, and stroke can be very lethal sometimes. And as the patient recovers, the patient may complain of some headache and some transient dizzy spells. And apart from these, patients may have some neuropsychiatric manifestations like anxiety and maybe lack of sleep. So these are the major neurological symptoms I can summarize as far as COVID-19 infection is concerned. जी, और आपको हम बता दें कि सोशल मीडिया और फेसबुक के ज़रिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे। और कल एक दर्शक ने हमसे पूछा था, वो सवाल हम शामिल नहीं कर पाए थे अपने कार्यक्रम में, लेकिन आज उसका जवाब जानना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल गुर्तू, एक पेशेंट है, उन्होंने बताया था कि कोविड-19 से वो ठीक हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो गंध है, सूंघने की क्षमता और जो स्वाद लेने की क्षमता है, उसमें उनको अंतर महसूस अभी भी हो रहा है। और पहले भी जब कोविड संक्रमण नहीं था, 1-2 साल पहले उनको ये समस्या हुई थी, उनके फेफड़े में संक्रमण था और उसके बाद उनके साथ ये दिक्कत शुरू हुई थी। तो क्या उनको भविष्य में भी सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो स्मेल यानी सूंघने की जो क्षमता उनकी कम हो गई है अटैक के बाद, ये कोविड से जुड़ी हुई तो है, लेकिन कोविड के अलावा और भी बहुत ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, जिसमें कि ये सेंस जो है स्मेल की काफ़ी दिन तक चली जाती है।
कोविड से भी और उनसे भी। तो पहले इनको हुआ होगा कोई और पैरा इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा वायरस का या राइनो वायरस का अटैक, उसके बाद गई होगी, अब ये कोविड से गई है। ये लगभग हमेशा ही वापस आ जाती है, पूरी तरह वापस आ जाएगी। 6 हफ्ते से 3 महीने तक लगते हैं पूरी तरह ये वापस आ जाना। जो सेंस ऑफ स्मेल या सूंघने की जो क्षमता है जो ये गई है, ये आ जाएगी वापस। ऐसा कोई परमानेंट लॉस अभी तक नहीं देखा गया है इसमें। Right, let's bring in Dr. M.C. Mishra into the discussion. Dr. Mishra, people with comorbidities, let's say a person with diabetes, what special concerns should they have? Because, is it that this particular virus, reduces, because there are some reports that say that, it can create some autoimmune kind of effect also. And as a result of that, the chances of recovery for people with comorbidities are very poor. You are absolutely right. Whatever data we have gathered so far over last 4 months, initially from Europe, then from USA, then from India, now as the mortality rates amongst severe COVID patients has been observed high in those who have had these comorbidities like diabetes, hypertension, chronic obstructive airway disease, obesity per se. So definitely, as you said, the immunity is also down in diabetes particularly, and particularly when the diabetes is uncontrolled. So surely diabetes comes out as a very significant risk factor in COVID outcomes, and we have now experience of last 4 months, and we have treated all kinds of COVID patients, mild, moderate and severe, and the mortality in diabetic patients admitted to critical care units has been really high in these patients. जी डॉक्टर संजय पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब बात होती है कोविड संक्रमण की, बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते हैं, लोग परेशान होते हैं, वैक्सीन सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो चीज़ है जिसने उम्मीद हमारी बना के रखी है वो रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट हमारी हर दिन के साथ बेहतर हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेहतमंद हो रहे हैं, तो इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 4 महीने या 6 महीने की जो भी डेटा है उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 90% पेशेंट रिकवर हो गए। और अगर आप डेली डेटा देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट जो कि नए आ रहे हैं और जो नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल है। तो ये जो गैप है, जैसे जैसे बेसिकली वाइडन होगा, तो अगर हम इंडिया लेवल का डेटा देखें तो अराउंड 65 to 66% पेशेंट सब रिकवर हो चुके हैं। तो जैसे जैसे रिकवरी रेट बढ़ रही है वैसे वैसे इस चीज को हम मान सकते हैं कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड है या जो दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं उनकी संख्या कम हो रही है। और एक और जो पॉजिटिव चीज हो रही है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। तो मोर्टेलिटी रेट कम होने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला ये हो सकता है कि अब हमें बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी है और कई दवाइयां जैसे डेक्सामेथासोन है और रेमडेसिविर है, जो नई नई दवाइयां आई हैं जिनको हम एक्यूट स्टेज में दे सकते हैं। और जैसे पेशेंट्स अपने घर पे पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर रहा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसको हम फौरन हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, रिकवरी रेट बढ़ी है, और ये दोनों चीजें काफी पॉजिटिव इंडिकेटर हैं। और अगर हम बाकी कंट्री से कंपैरिजन करें तो इस मामले में हम काफी आगे हैं। We have a caller online. In fact, Sanjay is calling us from Visakhapatnam. Sanjay, please ask your question. सर जी, मेरे को 4 days बिफोर फीवर हुआ था। पूछिए। उसके बाद मैंने पैरासीटामोल दिया था, तो फीवर तो चला गया है, पर अभी मेरे को स्मेल है वो नहीं हो रहा है। स्मेल नहीं, स्मेल नहीं कर पा रहे हैं आप? हाँ, स्मेल नहीं कर पा रहा मैं जी। फीवर पैरासीटामोल से चला गया था मेरा। डॉक्टर अनिल गुर्तू, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। अगर मैं इनकी बात
बात ठीक से समझा तो इनको एक बुखार का स्पेल हुआ था 2-3 दिन, जो कि ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद से इन्होंने ये देखा है कि इनकी जो सूंघने की क्षमता है, मतलब स्मेल और टेस्ट, खाने का जो स्वाद है, वो सब कुछ कम हो गया है बुखार के बाद। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये हम मान के चलें कि ये इनको कोविड संक्रमण होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये तुरंत आसपास के जो भी कोविड टेस्टिंग सेंटर है गवर्नमेंट का, वहां जाएं और अपना टेस्ट कराएं, और उसके बाद क्योंकि इनको और कोई खास सिम्टम नहीं है तो वो डॉक्टर फिर ये डिसाइड करेंगे ये होम क्वारंटाइन पे रहेंगे या भर्ती करेंगे। तो इनको जाकर तुरंत अपना चेक करा लेना चाहिए कोविड 19 के लिए, और उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के, सिम्टम्स असेस करके डॉक्टर्स इनको बता देंगे कि घर पे रहना है, आइसोलेशन, होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल में आइसोलेशन करना है। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बड़ा अहम सवाल है कोविड संक्रमण के दौरान। इस संक्रमण ने तो लोगों को परेशान किया ही, जो लोग दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इलाज टाल दिया या फिर वो डर रहे थे हॉस्पिटल जाने में। आप सीनियर सर्जन हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेलीमेडिसिन के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का समाधान अब संभव है और डॉक्टर हर संभव मदद भी कर रहे हैं। लोगों को इसके लिए और ज़्यादा आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इस पेंडेमिक में जैसे हम सबको पता है कि अब टेली कंसल्टेशन लीगल हो गई है, इसको एक लीगल स्वरूप दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत लाभदायक साबित हुई है। इसमें दोनों तरह से दोनों को फायदा है। पेशेंट्स को हॉस्पिटल विजिट्स बचता है, जिससे उनका एक्सपोजर, इस कोविड के टाइम पे सभी डरते हैं हॉस्पिटल में आने में कि कहीं हमको हॉस्पिटल जाएं और हमको इन्फेक्शन किसी से ना मिल जाए। डॉक्टर्स भी, पर्टिकुलरली सीनियर डॉक्टर्स जो 60 प्लस है, उनको भी एडवाइजरी है कि वो अपने को पेशेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा एक्सपोज न करें। तो ये टेली कंसल्टेशन, टेली हेल्थ एक पूर्ण साबित हुआ है, एक वरदान साबित हुआ है कोविड के टाइम में, और इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। केवल इसमें ये है कि सर्जरी नेचुरली टेली हेल्थ से नहीं हो सकती। सर्जरी के लिए तो आना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। अगर कैंसर की सर्जरी होनी है या किसी को हार्ट की सर्जरी होनी है या ब्रेन की सर्जरी की जानी है जो सेमी इमरजेंट है, इमरजेंट है और वेट नहीं कर सकते जिसके लिए, तो उनको ड्यू प्रिकॉशंस के साथ अब सर्जरी भी शुरू हो गई है। सब मेरे ख्याल ज्यादातर हॉस्पिटल्स में अब ऑपरेशंस भी होने लगे हैं। केवल ये है कि कोविड का टेस्ट करा लिया जाता है और वो निगेटिव होता है, कोई हिस्ट्री नहीं होती है पेशेंट की कि इनको कोई पीछे कोई सिम्टम हुआ है या किसी के संपर्क में आए, तो ये केयरफुल हिस्ट्री लेके फिर इनको ऑपरेशन भी अब शुरू हो गए हैं। तो जो एक बीच में थोड़ा सेटबैक हुआ था बाकी बीमारियों के लिए, वो अब पटरी पे आ रहा है और आने वाले समय में हेल्थ केयर जैसे पहले थी सुचारू रूप से वो शुरू हो जाएगी। और टेली कंसल्टेशन तो अब पूरे ऑल टाइम्स टू कम ये अब रहेगा, एक अच्छा कंपोनेंट रहेगा हेल्थ केयर में, जिसमें पेशेंट्स की विजिट्स बचाई जा सकती हैं और उससे खर्चा भी बचेगा। और अगर वही उसे राय टेली कंसल्टेशन पे मिल सकती है, जैसे अभी एक सवाल था कि विशाखापट्टनम से कि उनकी स्मेल चली गई है, डॉक्टर साहब ने यहीं से उनको एडवाइस कर दिया। और मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि जिसमें स्मेल जाती है वो डिजीज माइल्ड होती है, और ये मान के चलें कि ये कोविड था। मैं तो यही राय देता हूं किसी का अगर फोन आता है मेरे को कि आप ये मान के चलिए कोविड था, कोविड की वजह से आपको बुखार हुआ, स्मेल चली गई। स्मेल जैसे डॉक्टर संजय ने कहा वापस आ जाती है 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक के टाइम पे, कोई परमानेंट नहीं है ये, और माइल्ड डिजीज है, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं। अगर टेस्ट कराना चाहें तो करा लें, लेकिन अपने को क्वारंटाइन जरूर कर लें ये मान के कि ये कोविड है। जी, और हमारे साथ इस बीच माँ के कॉलर भी जुड़ गए हैं पंजाब से, मुखिंदर जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैं मुखिंदर सिंह बात करता हूँ जी, और मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं एक मीटिंग पे था 2 दिन पहले, वो पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने भी कल अपना टेस्ट दे दिया है, और मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे मैं आइसोलेट भी हो गया हूँ घर पे, और मैं परिवार का भी अपने का टेस्ट कराऊं या क्या कराऊं, ये मेरे को पूछना है जी। और मेरे को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और ये भी मैं पूछना चाहता हूँ जी। हमारे विशेषज्ञ जो भी इसका बेहतर जवाब और परामर्श दे पाए।
डॉक्टर अनिल। हाँ, तो इनके ये किसी से संपर्क में आए हैं और ये खुद भी पॉजिटिव पाए गए हैं, मेरा ख्याल यही ये कह रहे हैं। जी। तो इस वक्त जो सब में जरूरी चीज है, शायद इनको अपने आप में कोई ज्यादा खतरा नहीं है इस बीमारी से, क्योंकि मुझे लग रहा है माइल्ड ही है। लेकिन अभी सब में ज्यादा जरूरी चीज हमें ध्यान केंद्रित इन पे नहीं करना है, क्योंकि इनकी तो शायद माइल्ड है और ये सबसे अलग रहें, मास्क पहन के और दूरी बनाए रखें घर में, तो सब बच जाएंगे। लेकिन सब में ज्यादा चीज इस वक्त यह है कि अगले 3 दिनों में जितने भी लोग इनके संपर्क में आए हैं उनको भी एग्जामिन करके और टेस्ट के बाद जो उनको हम ट्रेस करते हैं, ट्रेसिंग मतलब अगले 3 दिनों में, अगले 72 आवर्स में जितने भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं, इनके संपर्क में आए हैं, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है, ताकि ये इनसे औरों को न फैले। ये सब में अहम बात, मुख्य बात इस वक्त यही है। इनकी हालात, निजी हालात जहां तक कि मैं समझ पाया हूं माइल्ड है, कोई खतरा नहीं है, अलग रखें, मास्क पहन के रहें और लोगों से दूर रहें जो घर में हैं। और लेकिन सब में ज्यादा जरूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है उनके जरिए इनकी जो और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो करना इस वक्त बहुत जरूरी है अगले 3 दिनों में। मेन थिंग वो है इस वक्त। Right. Dr. Guttu, I mean, after the Sero survey in Delhi and the potential prevalence of 25% of the people having been affected already, and probably it's increased now. Is there, I mean, should people go and take an antibody test? I mean, that's some question that's on people's minds, because I mean, if they have had the virus, then their chances of getting an infection are much less, and they can probably do more work. Yeah, so seroprevalence studies are population-based studies. Okay. I mean, one person getting it here and another person getting it there doesn't really help us from an epidemiological or a larger population perspective, which is the aim of the seroprevalence study. Of the total population, how many? So it's done as clusters, randomized stratified clusters, and then a population-wide map is constructed to know what are the hot areas, what are the cool area, green areas, what safety precautions in which zone. Zonation is done on the mapping basis. So it's good to get it done for your own personal knowledge, but to get a sense in terms of population dynamics, we need cluster studies, which they're going to do. The government will do that and is doing it. The other thing is, suppose I test positive for IgG, which shows that I have been infected and I am protected. Now that protection does not mean that I know for how long Yes. I am protected. That's yet not known, whether it's for 3 months or 3 years or 1 year. It's not settled because we are quite new into this epidemic, into this pandemic. So precautions, full precautions have to be taken by me, even if I know that I am protected through the the antibodies. So I have to take the same precautions as though I do not know or I am still not infected. Okay. Precautions have to be same for everyone. Yes, but at a population level, this gives us more information rather than at an individual level. At a population level, we are more happy if 24% of our population was in Delhi was seropositive, which means protected. And by then, between then and now, another month's time has gone by. So one can expect it may have gone up even further as the next study may reveal. So from a population sense, it makes sense. It makes a lot of positive sense. But from an individual perspective, it's only that I am protected, but I'm not still sure how long, how much. That is not settled. So I continue to take the same precautions in terms of wearing masks, avoiding crowded places, and maintaining the 2 meters or 6 feet of social distance with everyone, regardless of everything else. जी। और फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर भी हमें सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के। डॉक्टर MC मिश्रा, 37 साल की वर्षा है, वो पूछना चाह रही हैं कि कुछ दिनों से उन्हें भूख लगना बंद हो गई है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या ये कोई सिम्टम हो सकता है कोविड का? कोविड का सिम्टम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि क्या ये किसी के संपर्क में आए ऐसे व्यक्ति के जिनको बुखार था, खांसी थी
या सिर में दर्द था, नोजिया, वॉमिटिंग था, डायरिया था, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स पिछले 4 महीने में बहुत इवॉल्व हुए हैं और बहुत सारे सिम्टम्स, नए सिम्टम्स जुड़े हैं। शुरू में जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि थोड़ा बुखार होगा, खांसी होगी, ड्राई कफ होगा और साथ में किसी को सांस की तकलीफ भी हो सकती है, जुकाम, रनिंग नोज नहीं होगी। लेकिन अब रनिंग नोज भी इसमें हो सकती है, छींक भी आती है, खांसी भी आती है, बुखार तेज भी हो सकता है, इंटरमिटेंट होता है बुखार, लॉस ऑफ एपिटाइट भी देखा गया है, लॉस ऑफ स्मेल देखी गई, फिर ये टेस्ट का चले जाना देखा गया, डायरिया लोगों में निकला कि भाई ये इसमें जीआई ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसे डॉक्टर संजय ने बताया, डॉक्टर अनिल ने बताया कि इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिनास भी देखे गए, थ्रोम्बोसिस देखी गई, तो बहुत सारे और सिम्टम्स इसमें जुड़ते चले गए। तो खाली भूख न लगना और ये कितने दिन से लग रही है, ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि खाली ये कि भूख मुझे कितने दिन से नहीं लग रही मे नॉट बी द ओनली सिम्टम, लेकिन अपना जरूर ये ख्याल रखें, अगर बुखार हो और साथ में इनको खांसी या सांस में कोई तकलीफ हो, अपना ऑक्सीमीटर से पल्स, ये ऑक्सीजनेशन जरूर अपना चेक करते रहें, क्योंकि आजकल हम सबको यही एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि जो हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम एक इसमें आया है सामने, जिसमें लोगों को पता नहीं लगता और उनको ऑक्सीजन की कमी रह रही है शरीर में, और फिर वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है कि सडनली कोलैप्स कर जाते हैं लोग। तो अगर उनको उसी समय पे इंटरवेंशन मिल जाए, ऑक्सीजन के रूप में सप्लीमेंट मिल जाए, और जो भी उसका और कुछ होना है ट्रीटमेंट, एक्सरे चेस्ट हो जाए, सीटी हो जाए, जिससे पता लगे कि लंग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो जो और आगे इलाज रेमडेसिविर से या जो भी टोसिलिजुमैब से हो सकता है, या ऑक्सीजन खाली देने से लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। तो इनको ये थोड़ा अपने को और क्लोजली मॉनिटर करें कि इसके अलावा और कुछ इनको दिक्कत है तो बिल्कुल जाके किसी से राय लेना चाहिए। और अगर किसी के संपर्क में आए ऐसे व्यक्ति के जिनको बुखार, खांसी वगैरह था, जिनको कोविड के सिम्टम्स थे, तो बिल्कुल अपना अच्छे से चेकअप करा के और इसको रूल आउट करें। Dr. Sanjay Pandey, now that trials are on for vaccines, the question that comes to mind is what do people look at? I mean, in these candidates who are taking the vaccines, do they also have neurological studies being done on them to see whether it has an impact on their brains? Basically, as far as vaccines are concerned, then development of vaccine is a very, very robust scientific process. It cannot be done overnight. So definitely many vaccines, like in different labs all over the world, scientists are trying to develop. But there are a couple of vaccines, like one vaccine from AstraZeneca from the Oxford lab, Yes. and another vaccine from the Moderna, that is from the National Institute of Health, United States lab. So, and there is some news that there is some vaccine is being developed in Russia that has been in a very advanced stage. So, these are the 2 or 3 very, very potential vaccines, and we are expecting that the trials will be completed by September, October, and maybe at the end of this year or maybe at the beginning of the next year, the vaccines should be available. But as you rightly said, that development of vaccine is not a overnight process. Okay. And you need to be very, very clear that whatever vaccine is being developed, that is effective and that is safe. Because only efficacy is not a parameter. The vaccine has to be safe. Like if we trace the history, there have been many influenza vaccine that has been found to be associated with like incidence of GB syndrome, or like there has been some association with autism, and there has been some rare complication like encephalomyelitis or something like that. So when you give a vaccine to the healthy volunteers and you see the side effects, and then you give to a large population, and then you conduct a study, and then you come with a robust data that yes, the vaccine is safe and the vaccine is efficacious, then only it can go for the public use.
So we are expecting that maybe at the end of this Right. year or maybe We have a caller online. Deepak Tiwari is calling from Jamshedpur in Jharkhand. आप अपना सवाल पूछिए दीपक जी. जी सर, मेरे दो सवाल है. मेरे कहने का मतलब है कि मेरा हाथ जला हुआ था और मेरे राइट हैंड के शोल्डर में पेन आ रही थी, और इसके बाद मेरे को कुछ दिन के बाद बुखार हुआ, जिससे मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया, और क्वारंटाइन करने के बाद मैं अपने आप 14 दिन के बाद बाहर आ चुका हूँ. मुझे अब कोई वैसा फीलिंग नहीं, लेकिन ये पेन जा नहीं रही है सर. जी. क्या ये कोविड का रीजन हो सकता है? Dr. Mishra, would you like to answer that, sir? इनको ये जल गए थे और ये जो दर्द है इनको, ये हो सकता है उससे रिलेटेड हो. कोविड के, जैसे मैंने कहा कि कोविड के सिम्टम्स बहुत वेरीड हो गए हैं, और लेकिन अभी तक इस तरह का नहीं देखा गया है कि शोल्डर में अब किसी को परसिस्ट कर जाए पेन. जनरलाइज्ड माइल्जिया, जनरलाइज्ड वीकनेस, lethargy, myalgias actually persistent remaining residual myalgias have been reported by many of our doctor colleagues also कि ये इन्फेक्शन होने के बाद, रिकवरी होने के बाद काफी समय तक 2 से 3 हफ्ते तक बहुत वीकनेस, बहुत लेथार्जी, बहुत माइल्जियाज लोगों में आए, और लोगों ने रिपोर्ट किया इसको. हमारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया जो इससे ग्रसित हो गए थे संक्रमण से. लेकिन चूंकि इनके हाथ जल गया था, तो ये जो इनकी तकलीफ है ये उस वजह से हो सकती है. तो इसका बेस्ट है कि अब चूंकि इनका फीवर ठीक हो गया है, और ये बहुत अच्छा इन्होंने किया कि ये अपने को क्वारंटाइन कर लिया, और ये बहुत इधर उधर चक्कर में नहीं पड़े, और अब ये बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल जाके एक डॉक्टर से या तो टेली कंसल्टेशन करें, या फिर किसी पास के हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाके अपना चेकअप करा लें, किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से या सर्जन से, तो या न्यूरोलॉजिस्ट से, तो पता लग जाएगा कि ये पेन किस वजह से है. Okay. Dr. Gurtu, you know, when we talk about teleconsultation, can the doctor get all the information possibly that he needs to make a proper decision and evaluation of the patient through telecommunication? That's one question that comes to mind. I mean, there is a possibility if you do WhatsApp, for instance, you can actually write down a lot of details and give the doctor that kind of thing. But perhaps, you know, as in the phone calls that are coming through, maybe we're not getting enough information. और बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल मार्क ने उठाया है डॉक्टर अनिल गुर्तू. ये भी उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जब उसका पूरा डायग्नोस करके डॉक्टर जब वो मेडिसिन लिखेंगे, मैं एज अ पेशेंट वो दवाइयाँ लेती हूँ, मैं अपने डॉक्टर पे भरोसा करती हूँ, लेकिन कई बार डॉक्टरों को भी डर लगता है कि वो व्हाट्सएप पे अगर दवाई लिख कर दे रहे हैं या टेलीमेडिसिन के जरिए लिख कर दे रहे हैं, तो कोई उनके साथ पे कोई खतरा ना हो, विश्वास की कोई बात ना हो. तो ये एक सवाल डॉक्टर्स के मन में भी होगा. जो पहला हिस्सा था मार्क का, वो था कि टेलीमेडिसिन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक निष्कर्ष, नतीजे पे पहुंच सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में. तो जब हम कहीं भी कभी भी क्लिनिकल प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उसके 4 मुख्य चरण या स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं. पहला होता है सिम्टम एनालिसिस. मरीज जिस लक्षण से आया है, जिन लक्षणों से आया है, सिम्टम्स, वो अपनी अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, बोलता है, और हम उनको समझते हैं. इसके बाद हम एक मैप बनाते हैं, सिम्टम एनालिसिस. हर सिम्टम को हम जोड़कर एक सिंड्रोम में डालते हैं कि क्या है ये चीज टेलीमेडिसिन, खासकर विजुअल प्लस ऑडियो कंबाइंड प्लेटफॉर्म्स के जरिए बहुत अच्छी तरह से हो सकती है. इसमें कोई दो राय नहीं है. सवाल जवाब है और एनालिसिस है, सिम्टम एनालिसिस. ये सब में जरूरी चीज होती है हर मेडिकल फील्ड के लिए, सिम्टम एनालिसिस. ये भी एक तरह का टेस्ट ही मान के चलिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट ही मान के चलिए. इसके बाद हम आते हैं साइंस, यानी जो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं या पैल्पेट करते हैं, मरीज को जहां पर छूना पड़े किसी ना किसी तरह से मरीज के शरीर को, और उसके बाद हम कुछ एक नतीजे पे पहुंचते हैं. साइंस यानी कि एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन ज्यादातर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है. जैसे अगर हमें किसी को कोऑर्डिनेशन चेक करना है कि आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपकी गेट कैसी है, चाल कैसी है, आपकी आवाज कैसी है,
आपके फेशियल मसल्स कैसे हैं, आपके आंख के मसल्स की पावर कैसी है, ये हम अगर वीडियो एप्स के जरिए पेशेंट्स को समझाएं तो वो ओरल एग्जामिनेशन, मुंह का एग्जामिनेशन, काफ़ी कुछ आंख का एग्जामिनेशन बाहरी तौर पे, ये सब हम टेलीमेडिसिन विजुअल एड्स के जरिए कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा कंपोनेंट है वो है डायग्नोस्टिक्स। इसके आधार पे हमें कुछ निष्कर्ष, कुछ नतीजे पे पहुंच के उनको कुछ डायग्नोसिस बोल सकते हैं, वो करा के हमें वापस इमेज या विजुअल या ऑडियो के जरिए हमें ट्रांसमिट बैक कर सकता है और उसके बाद कुछ हम नतीजा निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इन 4 प्रोसेसेस को जोड़कर ही हमारा क्लिनिकल एनकाउंटर या क्लिनिकल अप्रोच बनती है। उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब, अगर एक अच्छा ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है तो हो सकता है काफी तौर पे, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सर्जिकल कंपोनेंट्स इस पे नहीं हो सकते। तो दूसरी बात जो आपकी थी, 2 चीजें हैं, 2 कॉन्टेक्स्ट्स, 2 संदर्भ हैं। एक नया मरीज पहली बार मुझसे जुड़ता है क्लिनिकल एनकाउंटर के लिए, वहां पर टेलीमेडिसिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा है जो फॉलो अप है ना, हमारे ओपीडीज में, मेडिसिन के ओपीडीज में, मैं मेडिसिन से हूं तो करीब 80-90% फॉलो अप पे आते हैं। जैसे हर बार इनको हम बहुत आसानी से कम 7 से 70% इन लोगों को हम टेलीमेडिसिन से जोड़कर इनका आना अस्पताल में काफी कम कर सकते हैं और उनको भी फायदा है और हमारे यहाँ भीड़ भाड़ भी कम हो सकती है। तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं जी। और इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं कर्नाटका से, गणेश जुड़ गए हैं हमारे साथ। गणेश, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। Hello sir, actually suppose one person become COVID positive, then after how many days he can do the next COVID test, and after how many days he can mix up with his family members or friends and office work everything, and how many, like after how many days he has to check his antibodies, Okay. and are there any different strains in the India? Then same strain, it is like can you just explain the severity, like all those things? Dr. Mishra, would you like to take that question? It's a very pertinent question, and it is quite concerning to everyone who has turned positive to COVID. First of all, a 14-day quarantine is absolutely essential. Till 14 days are over, one should not venture out. One should not have food on dining table along with family members if it is a home quarantine. If somebody is in a supervised environment like COVID care center, then naturally they discharge. And the guidelines have been revised again and again by ICMR that initially we had 14-day limit. Then when they saw that it was not necessary to remain in COVID care center for 14 days, then it was revised that the patient becomes afebrile. I mean, if somebody doesn't have fever for 3 days, and patient is otherwise okay, his oxygen level is okay, patient is not requiring any oxygen in the hospital, then that patient can go home but remain in quarantine to complete that 14-day period. Then again, it's an issue with most asymptomatic or pre-symptomatic patients or with mild disease, that in some people it has been seen that viral elimination from body has taken longer than 2 weeks. So it is a good idea to remain at home in quarantine, in home environment for another 14 days before you think of resuming your normal work or activities, so that you eliminate every possibility of the infection transmission to others, in family members and to others also. And at home also, it is the food at dining table or together has to be avoided. You remain in your room and get your food there, and restrict your activities and put on mask when you are coming out and for any purpose. And other family members also need to use those protective masks and maintaining that distance. So I think the quarantine total 28 days, something like that, because one of my close relative who had this recently, he came back from hospital and then we put him again in quarantine at home in his room, and providing that now since 28 days have passed, so he can mix up, he can go to his work. But again, as Dr. Guttu said, that the precautions will have to be continued
even after that, because we don't know, even if antibodies have been formed, how long they sustain, and it has been seen that these antibodies are not sustaining for a long time, wherever the studies have been done. So this doesn't provide permanent immunity as happens following vaccination for some flu or something. So I think precautions we'll have to keep taking even after we have had infection. People have come back with the same infection if they have not been taking precautions. But Dr. Mishra, one of the questions that he did ask is also that, you know, if you when can you test after? Suppose you've tested positive, then after 14 days you test again and you become negative. Then what happens? I mean, do you have to stay for another 14 days in quarantine? Now again, the guidelines have changed and revised. You don't need to test. If you are okay. There is no absolute necessity to take the test again, because the problem with RT-PCR test is that if it is negative, it doesn't help. If it is positive, it helps, because there is a false negative rate of RT-PCR is almost 30%. So now, initially these guidelines were there that everybody, when testing negative, was being discharged from hospital, but that was also done away with. So there is no actually need to take that RT-PCR again to confirm that you are negative. Just take these precautions. Quarantine is the best way. Putting on mask is the next best thing to prevent from spreading to others, and in isolation, in quarantine at home. डॉक्टर संजय पांडे, अगर आइसोलेशन की बात करें, क्वारंटीन की बात करें, तो स्ट्रेटजी समय के हिसाब से पिछले कुछ महीनों में बदलती रही हैं. अब विदेश से जो लोग आ रहे हैं वापस, उनके लिए भी स्ट्रेटजीज और गाइडलाइंस जारी की गई हैं. आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग बाहर से आए हैं और उन्हें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो घर पर है तो क्या एहतियात रखें? देखिए, आपने जैसे कहा कि अभी गाइडलाइन चेंज हुए हैं, तो पहले 14 दिन का क्वारंटाइन था, उसको 7 डेज कर दिया गया. तो जो अभी नई डेटा आ रही है, उस डेटा के अनुसार पेशेंट 7 से 9 दिन के बाद इन्फेक्टिव नहीं रह जाता है. और जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो डेड वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिटेक्ट हो सकता है, और RT-PCR में पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं रहता है. तो जो नई जानकारियां आ रही हैं और जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO नई गाइडलाइन जारी कर रहा है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत अब पेशेंट ऐसा मान सकते हैं कि 9 से 10 दिन के बाद इन्फेक्टिव नहीं रह पाता है. और अगर हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी करना चाहें, तो पेशेंट अगर 72 घंटे तक एसिम्प्टोमेटिक है, उसको फीवर नहीं आ रहा है और कोई सिम्टम नहीं है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है. और अगर डिस्चार्ज के बाद वो 4-5 दिन और क्वारंटाइन में रहने के बाद वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर सकता है. रीटेस्टिंग जरूरी है अगर वैसे पेशेंट में जो कि सिम्टोमेटिक है. अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो विदाउट रीटेस्टिंग भी पेशेंट अब डिस्चार्ज किए जा रहे हैं. Right, Dr. Gurtu, you know, it seems to be emerging that there are a lot of there is a percentage of error in the tests, because there are false positives, there are false negatives also. You know, are we moving to a stage where we can actually get a result that is 100% accurate? I mean, we are ramping up testing, we are doing a lot of things, but are we compromising on the quality of testing? See, there is practically no test in our field of medicine which is 100% accurate 100% of the times. All the times, all the tests are never 100% accurate. So when we talk of accuracies, we have to relate it to two factors. The biggest factor that we have to relate an accuracy of a test is the underlying prevalence of that disease. If the disease is very prevalent in a community, the problem will be of false positives. If the disease is less prevalent, you will have more of false negatives. Apart from this, any test has to be performed in real life. So the performance errors happen. I don't take the sample from a place deep enough in the nasal cavity, in the nose. So the test doesn't show up. Or during the transport, there are some errors of preservation, of temperature control, etc., etc. So between the actual site of testing and the lab, there exists an entire chain which can get disrupted or dysfunctional or corrupted at any of the links. So no test
anywhere in the world known to us is 100% accurate 100% of the times. So yes, once we know, so we always relate the test result to the underlying clinic. Okay. जी बिल्कुल Related to You go ahead, sir. Go ahead, sir. We Clinical. can hear you. clinical condition. If the underlying clinical condition warrants, dictates that the test result has to be interpreted this way, we interpret it as positive and actionable positivity. But if the underlying clinical condition casts a doubt, then we either repeat it or we wait and watch, observe. We don't act on it fast enough. So the entire test result has to be located within the larger clinical context and that within the larger prevalence of that disease in question, in COVID right now. The other way to improve test positivity is that, as now we are doing, to have more frequent testing. Suppose the test is less sensitive, it throws up a lot of false these things. So in that case, you go in for more frequent and a larger sample. The larger the sample, the more frequently it's tested on that sample, the more reliable will the aggregate net average become. So these are the two. Individually, in clinical contexts, when I encounter a patient with a test result before me, I have to relate it to the clinical condition of the patient in front of me before I say it's actionable or not actionable. And on a larger community context, zero prevalence studies, etc., there the lower sensitivities can be compensated by increasing the sample size, larger number of populations tested more frequently. So both of these in combination can counteract the error. जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, कोविड संक्रमण जब से शुरू हुआ है, लोगों के पास पहले कम जानकारी थी, अब लोगों के पास जानकारी है, टेस्टिंग बढ़ी है, रिकवरी रेट बेहतर हो रही है, मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो रही है। बावजूद इसके हम कुछ ऐसी घटनाएं सुनते और पढ़ते हैं जहां पर लोगों ने स्ट्रेस या तनाव में आकर कई बार ख़तरा उठाया है। मैं ये जानना चाहूँगी, इतनी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी और इतनी उम्मीद भरी खबरें सामने आते हुए भी बावजूद लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है कि भले ही वैक्सीन ना हो लेकिन ये बीमारी इतनी घातक नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक कुछ लोग जरूर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और हमने देखा विभिन्न अस्पतालों में लोगों ने सुसाइड किए इस वजह से। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उन लोगों तक जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पेंडेमिक के हमारे 3 कंपोनेंट थे शुरू से। पहला कंपोनेंट तो मेडिकल कंपोनेंट था जिसमें लोगों को सिम्टम हुए, सिम्टम के बाद उनको अस्पताल में आना पड़ा या कोविड केयर सेंटर में आना पड़ा और जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर से संबंधित था। दूसरा कंपोनेंट हमारा जब अप्रैल में जो हमने देखा और उसके बाद सभी लोग, सोसाइटी का हर सेक्शन फाइनेंशियली एडवर्सली इम्पैक्ट हो गया इससे। लोएस्ट हमारे रैंक के लोग जो लेबर थे, हमारे मजदूर लोग, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उनके भी काफी दिक्कत आ रही है सभी को। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज की संख्या कम हुई है, तो दूसरी तरफ बिजनेसेस बंद हो गए, छोटे बिजनेसेस बंद हो गए, तो एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और तीसरा कंपोनेंट साइको सोशल कंपोनेंट है इस बीमारी का। और जब आइसोलेशन में रहने में लोगों को दिक्कत है, स्ट्रेस है और कई तरह की चिंताएं लोगों को इससे ग्रसित होती हैं, टू द एक्सटेंट कि लोगों ने एक हमारे इवन पत्रकार ने सुसाइड किया ट्रॉमा सेंटर में। तो मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं एक गैप रह गया साइको एनालिसिस में और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में। तो इसमें कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल हो सकता था, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी काउंसलिंग कर सकते थे। लोगों की जिस लेवल की एक्यूमेंट की होनी चाहिए मेटिकुलस काउंसलिंग, वो प्रत्येक व्यक्ति की नहीं हो पाई। और उसमें जिसका भी मनोबल थोड़ा सा कमजोर था, मेंटल स्टेट, तो वो उससे इम्पैक्ट कर गया। तो इसको जरूर ध्यान देना चाहिए आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये इतना बड़ा पेंडेमिक हमने भी नहीं देखा, कभी किसी ने भी नहीं देखा, और हम सभी की कहीं ना कहीं चिंताएं इसमें व्याप्त हैं। डॉक्टर्स की भी है, आज डॉक्टर्स भी पेशेंट से संपर्क करने में उनको भी दिक्कत होती है कि कहीं हमको इन्फेक्शन नहीं लग जाए। पेशेंट्स को हॉस्पिटल आने में दिक्कत है, कहीं हमको वहां से संक्रमण ना लग जाए।
तो ये एक इतना बड़ा पैंडेमिक मेरे ख्याल से लाइफ टाइम में एक बार ही Dr. देखने में Mishra, आता there's है। been a caller waiting for some time, so let's take him. Rakesh Kumar is joining us from Bihar. Rakesh जी, आप अपना सवाल पूछिए. सर मुझे कुछ 2 दिनों से खराश तक गले में, उसके बाद अभी मेरा फीवर और ये सर्दी खांसी हो गई है, तो क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है क्या? डॉक्टर संजय पांडे, अगर आप इसका जवाब देना चाहें. देखिए, ये जो मौसम चल रहा है रेनी सीजन, इसमें कई तरह के वायरल इलनेसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कोरोना की टेस्ट कराएं। और बिल्कुल हो सकता है सर्दी जुकाम, गले में खराश, हल्का फीवर, ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप एक टेस्ट करा लें। जी, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर एमसी मिश्रा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि टेली काउंसलिंग हो या परामर्श हो, वो मरीजों को दिया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करना चाहूँगी वो कोविड वॉरियर या डॉक्टर्स जो हमेशा लगातार इस माहौल में रह रहे हैं, क्या उन्हें भी काउंसलिंग की ज़रूरत समय समय पर दी जानी चाहिए? उन्हें, अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो क्या इस दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए, टेली काउंसलिंग की जरूरत सबको है, पेशेंट्स को है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को है, डॉक्टर्स को है। और अभी आपने देखा होगा कि जून के महीने में हेल्थ स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा लोड आ गया था, खासकर हमारे जो साथ का हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल, या आप कोई भी हॉस्पिटल ले लें, तो वहाँ पेशेंट की तादाद इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर्स में एक बर्नआउट हो रहा था। और अभी आप देखें कर्नाटक की स्थिति, बेंगलोर की स्थिति, वहां भी सिमिलर सिचुएशन है। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली डॉक्टर्स को काउंसलिंग की जरूरत है, और डॉक्टर के साथ जो बाकी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिस है या जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि बर्नआउट, फटीग, और ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी लड़ाई है। अभी हमें पता नहीं है कि लड़ाई कब तक लड़नी है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो अगर इसमें फटीग सेट इन करता है या अगर हम थक जाते हैं, तो यह काफी मुश्किल भरा दौर होगा। तो इसमें काउंसलिंग की काफी जरूरत है, और काउंसलिंग की जरूरत सबको है, पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी इसमें लगा हुआ है, सबको इसकी जरूरत है। Indeed, Dr. Gurtu, that raises the question about anxiety, because people have definitely been suffering from that. Even ordinary people you just talk to, their biggest concern is that how to dodge this virus. It's on their mind like 80% of the time, and they have to concentrate on doing their work. They have to do other things, and then if you do come in contact with somebody who has had the virus, then it shows up on your app, and then you have to isolate yourself, and then all these sort of concerns build up in a person's mind. Do you think that the fear of support structures crashing for people, all these sort of things add to the psychological burden which is not being addressed, because people are left all on their own? That's true. The biggest relief under such conditions comes from the fact that I know that there are others in the community who care for me and whom I can approach anytime in case of need. So that feeling of mutualism, of connectivity, which is an emotional connect rather than any way else, that emotional connect and a sense of community, wherever the neighborhood or wherever you're living, immediate neighborhood, environment, social environment. So the main task right now, amongst others, is to build social structures of social support and community around wherever we are moving, living, working, or going for other activities. We should try and develop small micro communities, as they were, of care and support, with whom we can have an emotional connect and trust. So these communities, small communities of trust and mutual support and understanding, are very important next steps that we should address now. And eventually these micro communities can link up as networks, of expanding networks of support, mutual support and understanding. That's the prime task right now before us, wherever we live or work.
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को समर्थन दें, एक दूसरे का सहारा बने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर MC मिश्रा, ये सवाल आपके डोमेन में आता है कि नहीं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो देखा गया है जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको जो नई नई माएँ बनी हैं, जब ये बात आती है अगर वो कोविड संक्रमण है तो बच्चे को दूध पिलाएं या ना पिलाएं, इसका बड़ा सवाल उठता है। क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ब्रेस्ट मिल्क में ये रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ब्रेस्ट मिल्क में ये वायरस नहीं देखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को संक्रमण हो भी गया है, उसके बाद डिलीवरी हुई, उसमें तो ट्रांसमिशन नोटिस हुए हैं नियोनेट्स में, बट ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि फीडिंग करा सकते हैं। जी, Right, indeed. So, callers of we're still waiting for our callers, and also on social media people are contacting us. But we can understand, Dr. Pandey, that people have been living with the virus for some time, so they have sort of developed some sort of confidence. We talked about anxiety levels; they may be going down, I think, and with the success rate in terms of people who are recovering, coming out, people are gaining in confidence. Is that a bad thing, is the question that one has to ask, because many people I've noticed now are walking around with their masks on their mouths, their noses are free, they seem to be, this is not such a big concern anymore. What would you say? You were rightly saying that people are like becoming more careless, and it's really very dangerous, and it's very important that we should understand that decrease in mortality and the recovery rate is because we followed very strict guidelines, and that is the reason now the recovery rate is much better. And we should also understand that if we are going to be lax about this, or we are going to be careless about this, then there can be second wave, there can be resurgence of virus. So it's very important that like you can see that even schools are not open, coaching institutes are closed, and academic sessions are getting delayed. So lot of repercussions are happening because of this viral illnesses. So we should not do anything that there can be a second wave, there can be some worsening of situation, because that is going to create more problem, and that is the responsibility of every citizen to follow the guidelines. जी, महत्वपूर्ण बात आप कही है। हमारे पास समय कम है, तो डॉक्टर अनिल गुर्तू और डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा उसमें ब्रेस्ट फीडिंग में और ऐड कर दूं। जैसे मैंने कहा, अभी तक कोई इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अगेंस्ट कुछ मिला नहीं है, और WHO ये भी कहता है कि वन हैज टू वेइ द रिस्क एंड बेनिफिट। तो अगर उसके ना फीड कराने की इन्फेक्ट को रिस्क ज्यादा हो सकती है हमारे सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही उचित है जी। और अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग हैज बीन फाउंड टू बी सेफ अदरवाइज। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, फिर से रीएम्फसाइज यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन एनी ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी इलनेस फॉर दैट मैटर। और लोगों को अपना बचाव उनके अपने हाथ में है। अब जब इन्फेक्शंस दिल्ली में, बंबई में, चेन्नई में कम हो रहे हैं, और बाकी जगहों पे भी मैं आगे आने वाले 1 महीने में कम होंगे, तो लोगों को, लेकिन जैसे डॉक्टर गुट्टू ने भी कहा कि सबको प्रिकॉशन लेने ही होंगे, चाहे एंटीबॉडी मिल गए हैं उनमें या नहीं मिले हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड हाइजीन, और अगर घर में क्वारंटीन कर रहे हैं तो डिनर टेबल पे बैठ के खाना साथ में नहीं खाना है। क्वारंटीन मीन्स क्वारंटीन, कमरे में रहना है। तो ये बहुत आवश्यक है दूसरों को बचाने के लिए और अपने को जल्दी ठीक करने के लिए। डॉक्टर गुर्तू, I'll just summarize what Dr. MC Mishra just said. When we move out now, that things are opening up in Delhi at least, move with confidence, not overconfidence. Confidence helps, overconfidence kills. That is it. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी विशेषज्ञों का, हमारे दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए।
Right, and we'd like to thank all our doctors, Dr. Anil Gurtu, Dr. M.C. Mishra and Dr. Sanjay Pandey for their valuable time and for their inputs, which have all helped us, enlightening us and keeping us, up to date in this battle against COVID, which is, as they have said, it is our battle actually, because if we let our guard down, then we become more lax and we can spread this virus. It can become a second wave. We have actually done reasonably well till now and to contain the spread of the virus, and it's good that we keep the going because it's important that keeping your hands clean, this social distancing, your wearing the mask extremely important, even face shields. Now that gyms are going to open, people have to wear those face shields. So all these things are extremely important, otherwise we let the virus spread and that's going to be dangerous for all of us. बिल्कुल, तो सेहतमंद रहिए, सकारात्मक रहिए और कल फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।